हेलो एंड वेलकम टू द प्रवास सेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्ले इन अर्ली इयर्स। आज हम अपने टॉपिक में अपने सेशन में बहुत सारा फन करेंगे, जिसमें जो स्टोरीज, एक्टिविटी और पोएम्स जो भी कुछ होगा वो सब ऑलमोस्ट प्ले से रिलेटेड होगा। अब हम सूरा फातिहा की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। अ, अब हम तस्बीह पढ़ेंगे अल्लाह के किसी भी नाम की 20 सेकंड तक। Good morning, good morning, good morning. How are you? How are you? How are you today? How are you? How are you? How are you today? कैसे हैं आज आप लोग? हमें उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। Dear children, now it's poem time. Let's sing English poem. You all sing with me, okay? Out in the garden one fine day, with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball on one fine day. Out in the garden one fine day, with my doll I like to play. I rock my doll, I rock my doll on one fine day. Out in the garden one fine day, with my rope I like to play. I skip this way, I skip this way on one fine day. Did you enjoy it? आप भी खेलते हैं ना अपने टॉयज के साथ? आई नो सबके पास बॉल, डॉल एंड रोप होगी और अपनी डॉल्स के साथ, अपने टॉयज के साथ पोएम बोलेंगे। Let's sing another song. It's a popcorn song. Let's start. You put the oil in the pot, you put the oil in the pot, and you let it get hot, and you let it get hot. You put the popcorn in, you put the popcorn in. Sizzle, 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 pop. Sizzle, 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 pop. Yay! मिस, मेरी मानो पता नहीं कहाँ चली गई है। आपने देखी है मेरी मानो कहाँ गई है? जी मिस, आपकी मानो तो ये रही। ओह, मानो पता नहीं कहाँ चली गई थी। चले हम इसी से पूछते कि ये कहाँ गई थी। मानो बड़ी अच्छी मानो, मानो बड़ी प्यारी मानो, कहाँ गई थी, कहाँ गई थी? चलते चलते जा पहुंची मैं एक चक्की पर, चलते चलते जा पहुंची मैं एक चक्की पर। मानो बड़ी अच्छी मानो, मानो बड़ी प्यारी मानो, क्या किया था, क्या किया था? गेहूं डाला चक्की में और आटा पीसा था, गेहूं डाला चक्की में और आटा पीसा था। मानो बड़ी अच्छी मानो, मानो बड़ी प्यारी मानो, क्या बनाया था, क्या बनाया था?
मीठा मीठा प्यारा प्यारा केक बनाया था, मीठा मीठा प्यारा प्यारा केक बनाया था। मानो बड़ी अच्छी मानो, मानो बड़ी प्यारी मानो, हमें भी तो दो, हमें भी तो दो। चूहे खा गए केक और मैं खा गई उनको, चूहे खा गए केक और मैं खा गई उनको। मानो बड़ी गंदी मानो, मानो बड़ी गंदी मानो, मानो बड़ी गंदी मानो। Meow, meow, meow. Okay, now it's story time. What's the topic of our story? It's walking through the jungle. What is the topic? It's walking through the jungle. And who's the writer? It's Julie Lackham. It's written by Julie Lackham. Now see what is inside our story. Walking through the jungle, walking through the jungle. What do you see? What do you see? Can't you hear a noise? Sss. Can you hear a noise? What could it be? What could it be? Ooh, over there a snake. Over there a snake. Snake is looking for his tea. Snake is looking for his tea. Now see what's next. Leaping through the jungle, leaping through the jungle. What do you see? What do you see? Can you hear a noise? Can you hear a noise? Roar! Roar! What could it be? What could it be? Ooh, over there a lion. Over there a lion. Lion is looking for his tea. Lion is looking for his tea. Over there a lion. Now see what's next. Running through the jungle, running through the jungle. What do you see? What do you see? Can you hear a noise? Drum! Drum! What could it be? It's an elephant. It's an elephant. Elephant is looking for his tea. Elephant is looking for his tea. It's an elephant. Now see what's next. Swinging through the jungle, swinging through the jungle. What do you see? What do you see? Can you hear a noise? Chitter chatter, chitter chatter, chitter chatter. Can you hear a noise? What could it be? Ooh, over there a monkey. Over there a monkey. Monkey is looking for his tea. Monkey is looking for his tea. Over there a monkey. Now let's see what next. Wading through the jungle, wading through the jungle. What do you see? What do you see? Can you hear a noise? Snap, snap, snap. Can you hear a noise? What could it be? It's a crocodile. It's a crocodile. Crocodile is looking for his tea. Crocodile is looking for his tea. It's a crocodile. Now let's count how many animals we have found. Crocodile, monkey, elephant, lion, and the last one is snake. Yay! Have you enjoyed the story? Yay! बच्चों अब हम नज़म पढ़ते हैं छोटा सा मकोड़ा। छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया,
जोर से आई बारिश मकोड़ा बह गया, धूप जो निकली तो पानी सूख गया, छोटा सा मकोड़ा फिर से चढ़ गया. Children, now it's poem time. Do you know which poem we are going to sing? Yes, Rolly Polly. Shall we start? Okay, start with me. Rolly Polly, up, up, up. Rolly Polly, down, down, down. Rolly Polly, in. Rolly Polly, out, out, out. Rolly Polly, slow, slow, slow. Rolly Polly, fast, 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 fast. मजा आया? अब हम पढ़ेंगे अपनी फेवरेट नज़म. ये क्या है? ये चूचू है. चलो स्टार्ट करते हैं. चू 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 चू. मैं नन्हा सा चूजा हूँ, अंडे में से निकला हूँ. नन्हा सा चूजा हूँ, अंडे में से निकला हूँ. मुर्गी मेरी अम्मी है, मैं अम्मी का चूजा हूँ. चू 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 चू. मैं नन्हा सा चूजा हूँ, अंडे में से निकला हूँ. मुर्गा मेरे अब्बू है, मैं अब्बू का चूजा हूँ. चू 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 चू. ये कैसी लगी आप सबको पोएम? अच्छी लगी? बच्चों, अब टाइम हुआ है उर्दू की कहानी का. कहानी सुननी है? आपको पता है आज की कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम है धड़ धड़ धड़ाम. देखते हैं कहानी में क्या हो रहा है. एक ट्रक सड़क पर जा रहा था और ड्राइवर मजे से ट्रक चला रहा था. कैसी? बम 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 बम. धड़ धड़ धड़ाम. ये कैसी आवाज आई? लगता है ट्रक से कुछ गिर गया है. देखते हैं क्या गिरा है. ओ, एक गधा गिर गया है. और कैसी आवाज आई गधा गिरने से? धड़ धड़ धड़ाम. ड्राइवर को तो कुछ भी पता नहीं, वो तो मजे से ट्रक चला रहा है. बम 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 बम. धड़ धड़ धड़ाम. फिर से आवाज आई. लगता है ट्रक से फिर कुछ गिर गया है. देखते हैं अब क्या गिरा. ओ, ट्रक से एक साइकिल गिर गई है. ड्राइवर को तो कुछ भी पता नहीं, वो तो मजे से ट्रक चला रहा है. बम 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 बम. धड़ धड़ धड़ाम. फिर से आवाज आई. लगता है ट्रक से फिर कुछ गिर गया है. क्या गिरा है? ओ, एक कुर्सी गिर गई है. कुर्सी गिरने से कैसी आवाज आई? धड़ धड़ धड़ाम. ड्राइवर को तो कुछ पता नहीं है, वो तो मजे से ट्रक चला रहा है. कैसे? बम 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 बम. धड़ धड़ धड़ाम. फिर से कुछ गिर गया है. देखते हैं क्या गिरा है. एक चारपाई गिर गई है. चारपाई गिरने से कैसी आवाज आई? धड़
धड़ धड़ाम। ड्राइवर को तो अब भी कुछ पता नहीं, वो तो मजे से ट्रक चला रहा है। कैसे? बम बम बम, बम बम बम। धड़ धड़ धड़ाम। अब क्या गिरा ट्रक से? फिर से आवाज आई है। देखते हैं क्या गिरा है। ओ, एक चावल की बोरी गिर गई है। और बोरी गिरने से कैसी आवाज आई? धड़ धड़ धड़ाम। ड्राइवर को तो अब भी कुछ पता नहीं है, वो तो मजे से ट्रक चला रहा है। बम बम बम, बम बम बम, बम बम बम। धड़ धड़ धड़ाम। फिर से आवाज आई है। लगता है फिर कुछ ट्रक से गिर गया है। देखते हैं क्या गिरा है। ओ, अब एक भेड़ गिर गई है। भेड़ गिरने से कैसी आवाज आई? धड़ धड़ धड़ाम। सब बोलेंगे मेरे साथ। धड़ धड़ धड़ाम। ड्राइवर को तो अब भी कुछ पता नहीं है, वो तो मजे से ट्रक चला रहा है। कैसे चला रहा है? सब चलाएंगे ट्रक। बम बम बम, बम बम बम। धड़ धड़ धड़ाम। फिर से आवाज आई है ट्रक से। अब क्या गिरा ट्रक से? ओ, एक कालीन गिर गया है। और कालीन के गिरने से कैसी आवाज आई? धड़ धड़ धड़ाम। सारे बच्चे मिलके बोलेंगे। धड़ धड़ धड़ाम। ड्राइवर को तो कुछ भी पता नहीं। ड्राइवर देखते हैं। ओ, ट्रक तो खाली हो गया। ट्रक की सारी चीजें रास्ते में गिर गई और ड्राइवर मजे से ट्रक चला रहा था। बम बम बम, बम बम बम। चलिए आइए देखते हैं ट्रक से कितनी चीजें गिरी और कौन कौन सी गिरी। क्या गिरा था? एक ट्रक से गधा गिर गया था और ट्रक से एक साइकिल भी गिर गई थी। और क्या गिरा था? जी हाँ, एक भेड़ गिर गई थी। और क्या गिरा था? बताइए जल्दी से ना। जी हाँ, एक चावल की बोरी गिर गई थी। और फिर एक, हाँ बिल्कुल सही जवाब, एक कालीन गिरा था। और भी एक चीज थी जो ट्रक से गिरी थी। जी हाँ, ट्रक से चारपाई गिरी थी और ट्रक खाली हो गया। आवाजें कैसी आई थी? धड़ धड़ धड़ाम। मजा आया कहानी सुनने में? मुझे लग रहा है बच्चों ने बहुत एंजॉय किया होगा। Let's sing another poem. It's a Roro board. For the poem, you need to stretch your legs and then start. Okay? Row, row, row your boat gently down the stream, gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Now let's sing slow, slow, slow. Row, row, row your boat gently down the stream, gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Now let's sing fast, 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 fast. Row, row, row your boat gently down the stream, gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Gee, did you like the poem? Yes.
Okay, now it's patterns time. Are you ready for patterns? Good. अच्छा, पैटर्न्स में हम पहले एक्शन पैटर्न्स करेंगे. सबसे पहले आप एक बार क्लैप करेंगे और एक बार टैप करेंगे और इसको हम 3 मर्तबा करेंगे. क्लैप टैप, क्लैप टैप, क्लैप टैप. अब हम 2 बार क्लैप करेंगे और 2 बार टैप करेंगे. क्लैप क्लैप टैप टैप, क्लैप क्लैप टैप टैप, क्लैप क्लैप टैप टैप. अब 3 मर्तबा क्लैप करेंगे और 3 मर्तबा टैप करेंगे. क्लैप क्लैप क्लैप, टैप टैप टैप, क्लैप क्लैप क्लैप, टैप टैप टैप, क्लैप क्लैप क्लैप, टैप टैप टैप. वेरी गुड. अब हम पैटर्न्स शेकर के साथ करेंगे. एक मर्तबा हम शेक करेंगे एंड देन आप स्टॉप हो जाएंगे. उसके बाद 2 मर्तबा क्लैप करेंगे और स्टॉप. और उसके बाद आप 3 मर्तबा करेंगे. शेक 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 स्टॉप. शुरू करें. अभी कोई भी शेक नहीं करेगा. चलिए शुरू करते हैं. शेक स्टॉप, शेक स्टॉप, शेक स्टॉप. वेरी गुड. नाउ 2 times shake and stop. Shake shake stop. आवाज आ रही है मुझे किसी बच्चे की. Shake shake stop, shake shake stop. Very good. Now 3 times shake and stop. Shake 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 stop, shake 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 stop, shake 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 stop. Very good. Good job. Now shake slow, 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 slow. Stop. आवाज आ रही है किसी की. स्टॉप हो जाए सब. गुड. नाउ शेक फास्ट 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 फास्ट. स्टॉप. वेरी गुड. बहुत अच्छा किया सबने. वापस रख दें, वापस रख दें सारे शेकर्स, सारे शेकर्स. जहाँ से उठाए, जहाँ से उठाए वहीं पे रख दें, वहीं पे रख दें. वेरी गुड. बच्चों, अब हम शेकर्स के साथ एक नज़म पढ़ेंगे. मिस, ये क्या है? ये तो गाँव है. गाँव? किसका गाँव है ये? अब्दुल्ला का है ये गाँव. E-I-E-I-O. अब्दुल्ला का है ये गाँव. E-I-E-I-O. उस गाँव में रहती है एक गाय. E-I-E-I-O. उस गाँव में रहती है एक गाय. E-I-E-I-O. कभी मोमो यहाँ, कभी मोमो वहाँ, यहाँ मुँह वहाँ मुँह, हर जगह मोमो. अब्दुल्ला का है ये गाँव. E-I-E-I-O. अब्दुल्ला का है ये गाँव. E-I-E-I-O. उस गाँव में रहती है एक बतख. E-I-E-I-O. उस गाँव में रहती है एक बतख. E-I-E-I-O. कभी कह के यहाँ, कभी कह के वहाँ, यहाँ के वहाँ के, हर जगह कह के. अब्दुल्ला का है ये गाँव. E-I-E-I-O. अब्दुल्ला का है ये गाँव. E-I-E-I-O. उस गाँव में रहती है एक भेड़. E-I-E-I-O. उस गाँव में रहती है एक भेड़. E-I-E-I-O. कभी बै बै यहाँ, कभी बै बै वहाँ, यहाँ बै वहाँ बै, हर जगह बै बै. अब्दुल्ला का है ये गाँव. E-I-E-I-O. अब्दुल्ला का है ये गाँव. E-I-E-I-O. मजा आया आपको अब्दुल्ला के गांव में? सब
सबने एंजॉय किया ना? अपने पेरेंट्स के साथ ये नज़म जरूर दोहराइएगा। Now it's Ringa Ringa Roses time. Are you ready for Ringa Ringa Roses? So let's sing. Ringa Ringa Roses, a pocket full of roses, a tissue, we all fall down. Birds are in the meadow, eating buttercups, a tissue, we all stand up. Very good, good job. अब हुआ है पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी टाइम। मैं आज आपको 6 से 18 माह के बच्चों की एक्टिविटीज़ बताऊंगी, जिसमें उनके मुख्तलिफ डोमेन्स को हम बेहतर बनाएंगे। फ़िज़िकल डोमेन में हमारी 2 एक्टिविटीज़ हैं जिनका मैं आपसे ज़िक्र करूंगी। एक है हमारे पास बैंग अ पॉट। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं और स्पून है या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम बैंग कर सकें। बच्चे छोटे हैं तो वो आसानी से उसको होल्ड कर सकें, पकड़ सकें। बच्चे स्पून से या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे वो बर्तन स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो उसे बैंग करेंगे। अब आप उनको डिफरेंट चीज़ें भी बता सकते हैं कि सॉफ्ट साउंड है, लाउड है, तो इस तरह से वो बैंग को पॉट को बैंग करते हुए अपने फाइन मोटर स्किल्स को बेहतर करेंगे। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है, जिस तरह हमारे घरों में अक्सर बॉक्सेस खाली होते हैं, छोटे बच्चे हैं तो हम कोशिश करेंगे छोटे से बॉक्सेस करें। इस एक्टिविटी को हम स्टेकिंग कहते हैं। इसमें बच्चे बॉक्सेस को स्टेक करेंगे। आप भी उनके साथ होंगे, पेरेंट्स उनके साथ होंगे और उनको एक एक बॉक्स स्टेक करके बताएंगे। अच्छा, ये बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। पेरेंट्स की यही कोशिश होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को ड्रिलिंग करें, उनको रोज़ाना प्रैक्टिस करवाएं ताकि बच्चे उस चीज़ में महारत हासिल कर सकें। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज डोमेन की, जिसमें बच्चों की ज़बान की महारत बेहतर होती है। इसके लिए हमारे सबसे बेहतरीन तरीका किताब है, बुक है, जिसकी बहुत आज के दौर में ज़रूरत है कि बच्चे बुक्स को पढ़ें, उनको टच करें, उनको हाथ लगाएं। छोटे बच्चे हम कोशिश करेंगे कि ऐसी किताबें हों जो तस्वीर हों और हम उनको एक्सप्लेन कर सकें बच्चों को। जैसे ये तस्वीर है, आप बच्चों से पूछ सकते हैं या पूछेंगे कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस। दिस इज़ अ शर्ट, इट इज़ येलो इन कलर। कौन सा रंग है? पीला रंग है। ये कौन है? बच्चा है। और इसके शर्ट का रंग क्या है? जामनी। इस तरह से आप उनको किताब में तस्वीर दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक किताब को आप 1 हफ्ते तक चलाएं ताकि बच्चों को वो चीज़ें याद हो जाएं। सोशल डोमेन में हमारे पास एक बहुत अच्छी सी गेम कह सकते हैं जो हम अपने बचपन में भी खेलते थे। अम्मी अपने चेहरे पर दुपट्टा रखती थी और बच्चों को बोलती थी पीकाबू या हाउ करती थी। तो इस तरह आप बच्चे के फेस पे, चेहरे पर अपना दुपट्टा रख सकती हैं और उनको बोलेंगे पीकाबू। तो इस तरह आपका बच्चे के साथ सोशली इंटरेक्ट होगा। इसके अलावा हमें अगर अपने बचपन की याद हो तो हम चम 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 खेलते थे। आप किसी भी नज़म को कोई पोयम के ज़रिए भी चम चम खेल सकते हैं। या एक और नज़म आपको याद आ रही होगी, एक और खेल है जैसे चील उड़ी, कौवा उड़ा। इस खेल से बच्चे जानवरों के नाम भी सीख रहे हैं। आप कोई और नामों से भी उनको ये खेल खिला सकते हैं। इन खेलों से हमारा बच्चों के साथ सोशली इंटरेक्शन होता है। अब हम जो है वो एक एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी, कॉग्निटिव डोमेन, जो उनकी जहनी सलाहियत को बेहतर करेगी।
इसके लिए आप एक बॉक्स ले सकते हैं जिसमें कार्टन हो, रैप कर दें आप। घर में हमारे अखबार होते हैं और कोई भी रंग कागज़ का कलर का कागज़ हो तो आप बॉक्स को रैप कर सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ खिलौने रख दें बच्चों के, और फिर बच्चों को बोलें कि कोई भी खिलौना इसमें से लें। जी ये क्या है? भालू है। व्हाट इज दिस? इट्स बेयर। फिर इसके बारे में आप सवालात करेंगे। इट इज सॉफ्ट, नरम है ना? इट्स कलर इज येलो एंड वाइट। इस तरह से मुख्तलिफ खिलौने आप उनको दिखाते जाएंगे। वो खुद हाथ डाल के कोई भी खिलौना लेंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे या बताएंगे, महसूस करेंगे। तो इस तरह से जो है वो इनकी कॉग्निटिव डोमेन जो है बेहतर होगी। फिज़िकल डोमेन में हम अब ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करेंगे जो बच्चों के बड़े मसल्स को बेहतर बनाती हैं। इसमें आप बच्चों, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं 6 से 18 माह तक, कुछ शुरू में क्रॉल करते हैं, तो आप कोई भी टॉय हो, बॉल हो छोटा सा, वो एक फासले पर रखेंगे और इतना फासला हो कि वो बच्चे से काफ़ी करीब हो। बच्चा क्रॉल करके उसको लेकर जाएगा, और अगर 1 साल से बड़ा है, 12 महीने का है या उससे ज़्यादा मंथ्स का है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वॉक करना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स को उनके साथ रहना है, उसके लिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा सा फासला बढ़ा देंगे और कोई भी ऑब्जेक्ट फासले पर रखेंगे, और पेरेंट्स को बच्चे के साथ साथ उसको मूव करना है, उसको वॉक कराना है, और वो उस टॉय तक पहुंचेगा। इस एक्टिविटी से उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा 19 to 36 मंथ्स के बच्चों के लिए एक्टिविटी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो है पज़ल की एक्टिविटी, जिसमें आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सी पज़ल हमने ली है, और इसे बच्चा भी इंजॉय करता है और इजीली इसको बना भी लेता है। इससे होता ये है कि बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि ये है एक, इस तरीके से आप घर पे बना सकते हो, इजी है बहुत और ये इजीली हो जाएगा। हमारे पास सेकंड जो है वो टेडी टूर है, जिसमें हमें करना है ये बिल्कुल सिंपल सा, एक शू बॉक्स लेना है और उसमें एक टेडी को बिठा देना है। एक टेडी को शू बॉक्स में रखना है और उसके साथ एक स्ट्रिंग लगा देना है, जिस तरीके से ये है, एक स्ट्रिंग लगा दिया और बच्चे को बोलना है कि इसको टूर कराए। आपके बेशक घर में ही बच्चा इसको बिठा के और इसको एक राउंड खिला सकता है गोल, और उसको बच्चे को आपको समझाना है कि इस टेडी को कुछ लगना नहीं चाहिए, आप ज़्यादा स्पीड में नहीं ले जाओगे कि ये गिर नहीं जाए, आपको इसका ख्याल रखना है अच्छे से, इसको एक छोटा सा टूर कराना है। इससे नॉर्मली होगा ये, हम बच्चे को ये सिखा रहे होंगे कि उसके सोशल और इमोशन, उसके जो स्किल्स है उसको डेवलप कर रहे होते हैं हम, उसके फाइन मोटर्स जैसे कि उंगलियां हैं वो इसको होल्ड करता है, वो डेवलप हो रही होती है, उसकी ग्रॉस मोटर डेवलप हो रहे होते हैं जब वो चल रहा होता है, उसके पाँव जिस तरीके से ऐसे। ये हमारी हो गई सेकंड एक्टिविटी। और थर्ड एक्टिविटी हमारे पास है फ्लैश कार्ड्स की, जिसमें हम नॉर्मली एक सिंपल सा शीट बना लेंगे इस तरीके से, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हम ट्रेसेस कर लेंगे उसको। उसके बाद बच्चे को एक बॉल में ये सारी चीज़ें हम रख के दे देंगे ऐसे, तो बच्चा इसमें से एक एक चीज़ पिक करेगा, उसको बोलना कि ऑरेंज पिक करो, तो वो ऑरेंज पिक करेगा और उसको सही जगह पे रखेगा कि जहाँ वो फिट हो रहा है। जिस तरीके से एप्पल है, एप्पल की जगह पे, ब्रिंजल की जगह पे, वो इस तरीके से बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के हम नाम भी दे रहे होंगे, उसको रिकग्नाइज कर रहा होगा बच्चा क्या चीज़ एप्पल है, क्या ऑरेंज है, इस तरीके से, और वो इसे प्ले के तरीके से ले रहा होगा। इस तरीके से हमारी फोर्थ एक्टिविटी जो है वो है बुक रीडिंग। जैसे हमारा सेशन था प्ले इन अर्ली ईयर्स, इस सेशन में भी हमने बुक रीडिंग के ऊपर फोकस किया है। बुक रीडिंग बेइंतहा ज़रूरी है, जिसमें आप बच्चों को अपने ही सामने बिठा के और उनसे बुक रीडिंग करवाओगे या उनको स्टोरी पढ़ के सुनाओगे। बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो यह हमारी एक्टिविटी थी आज की। अच्छा पेरेंट्स, अब हम पढ़ेंगे राउंड एंड राउंड द पोएम। इसके लिए आपको अपने बच्चों को अपने सामने बिठाना है और उनका हाथ अपने हाथ में लेके ये एक्शन उनके हाथ पे करना है, जिस तरीके से हम करेंगे। Round and round the garden, like a teddy bear,
One step, two step, tickle you under there. Round and round the haystack went the little mouse. One step, two step in his little house. Very good. ओके, इट्स आंचल टाइम। आंचल का मतलब है हम अपने सेशन के एंड में जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे आंचल की पोएम। आंचल का मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चों को एक सूथिंग एनवायरनमेंट देना है। वो पूरे सेशन में वो बच्चा सारी एक्टिविटी पोएम सब कुछ करके उसको फिर अब रिलैक्स करना है, उसको एक एनवायरनमेंट देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 आँखें दी। अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 आँखें दी। इन आँखों से मैंने तेरी सारी दुनिया देख ली। इन आँखों से मैंने तेरी सारी दुनिया देख ली। अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 कान दिए। अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 कान दिए। इन कानों से मैंने तेरी सारे गीत सुन लिए। इन कानों से मैंने तेरे सारे गीत सुन लिए। अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 हाथ दिए। अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 हाथ दिए। इन हाथों से मैंने तेरे सारे काम कर लिए। इन हाथों से मैंने तेरे सारे काम कर लिए। अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 पैर दिए। अल्लाह तेरा शुक्रिया तूने मुझे 2 पैर दिए। इन पैरों से मैंने तेरी सारी दुनिया घूम ली। इन पैरों से मैंने तेरी सारी दुनिया घूम ली। हेलो पेरेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि बच्चे की ज़िंदगी में खेल कूद की अहमियत। बच्चे की ज़िंदगी में खेल कूद की अहमियत जब से स्टार्ट होती है जब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि खेल कूद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे की नशोनुमा के लिए। खेल कूद ही है जिसके ज़रिए बच्चा अपनी फ़िज़िकल स्किल्स लर्न करता है, अपनी फ़िज़िकल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। डिफरेंट गेम्स होती है, जैसे हम कैचिंग वाली गेम खेलते हैं, बॉल थ्रो करते हैं, बच्चा कैच करता है। उसके ज़रिए बच्चा कैचिंग के ज़रिए अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करता है, यूज़ करता है। उसी गेम के ज़रिए बच्चा बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहा होता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को फिज़िकली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। जब वो बच्चा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा तो वो अपनी डिफरेंट पार्ट यूज़ करेगा बॉडी का, जैसा हाथ, फिंगर्स हैं, हाथ है, तो वो जब वो टच करेगा, फील करेगा, सेंसेस यूज़ करेगा। और कोशिश ये करें कि हम फिज़िकल गेम्स की तरफ जाएं, ना कि स्क्रीन टाइम पर, क्योंकि स्क्रीन टाइम के ज़रिए बच्चे की बहुत सारी चीज़ें बच्चे की लर्निंग को डिस्ट्रॉय करती है। बहुत सारी, जैसे हम बच्चा स्क्रीन टाइम के ज़रिए बच्चे का कंसंट्रेशन पावर में असर होता है। तो इसके लिए हम कोशिश करें कि हम स्क्रीन टाइम को कम करें और ना करें। इसके बरक्स हम बच्चे को फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ ले आएँ। जब वो बच्चा फ़िज़िकल एक्टिविटी करेगा, उसको टच करेगा, उसको अपने सेंसेस यूज़ करेगा, तो उसके अंदर लर्निंग आएगी, वो अपनी चीज़ें, स्किल्स को डेवलप करेगा और वो हेल्दी और फिट भी रहेगा। प्ले के ज़रिए बच्चा अपना एक्सप्रेशंस लर्न करता है। उसको ये लर्निंग पैदा होती है कि वो डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करे। जैसे हमारे पास पिकाबू वाली एक्टिविटी है, जब वो बच्चे को चीज़ नज़र आती है सामने, जब बच्चे के सामने नहीं होती चीज़, लेकिन जब अचानक से उसको नज़र आती है तो वो अपना एक्सप्रेशन शो करता है, अपने इमोशंस शो करता है। हम इस एक और एक्टिविटी देख सकते हैं, टेडी बियर वाली, टेडी बियर पार्टी। उस पार्टी के ज़रिए जब वो देखता है कि बच्चा टेडी बियर को खाना खिला रहा होता है, तो वो एक अपनी हैप्पीनेस शो कर रहा होता है कि बियर ने मेरे हाथ से खाना खाया, जैसे वो अपनी मदर के हाथ से खाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम गेम खिला रहे हैं जिसमें बच्चा अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, वो कोशिश करें कि वो पेरेंट अपने साथ खिलाए या सोशलाइज होकर खिलाए,
उनके फ्रेंड्स के साथ। थर्ड थिंग, बच्चा प्ले के ज़रिए अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में लर्निंग होती है, डिफरेंट सिचुएशंस को लर्न करता है। वो ये लर्न करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह सॉल्व करना है, और वो प्ले इसका बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है उसकी लर्निंग का, क्योंकि प्ले ही है जिसके ज़रिए बच्चा लर्न करता है और बच्चा ट्रायल एंड एरर से लर्न करता है। जैसे हम ब्लॉक वाली एक्टिविटी होती है, उस ब्लॉक वाली एक्टिविटी से बच्चा चीज़ें बनाता है। जब बच्चा चीज़ें बना रहा होता है उसी दौरान वो ब्लॉक टूटता भी है, गलत चीज़ बनती भी है, लेकिन वो अपने ट्रायल एंड एरर से सीखता है। वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जो उसके इमेजिनेशन में चीज़ होती है, उसी इमेजिनेशन वाली चीज़ को वो सोचता है और वो ब्लॉक के सामने ब्लॉक पर वो बनाने की कोशिश करता है। हम कोशिश करेंगे जो बच्चा प्ले कर रहा है वो सोशलाइज होकर करे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो वो सोशलाइजेशन के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखता है, अपने आइडियाज़ को सामने पोर्ट्रे करना सीखता है कि किस तरह मैं अपने आइडियाज़ दे सकता हूँ, किस तरह सामने वाले के आइडियाज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो उस फ्रेंडशिप करता है, उस फ्रेंडशिप के ज़रिए वो बच्चों के डिफरेंट वो एक्सप्रेशंस को सीखता है, इमोशंस लर्न करता है, उसके नॉलेज इंक्रीज़ होती है इसके ज़रिए। तो प्ले एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बच्चे की लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, सेंस की डेवलपमेंट। जैसे हम बॉल वाली एक्टिविटी खेल रहे हैं, तो हम बॉल वाली एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को डिफरेंट वोकैब्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि ये बॉल है, इसका कलर पिंक है। अगर हम पिकाबू वाली एक्टिविटी खेल रहे हैं तो जो बच्चा चीज़ देखता है सामने, तो हम बच्चे को ये बता सकते हैं, वाओ ये बेयर है, इसका कलर देखो ब्राउन है। तो वो उस गेम के ज़रिए डिफरेंट वोकैब्स सीख रहा है और डिफरेंट चीज़ें लर्न कर रहा है, और वो अपने आइडियाज़ को टेस्ट भी कर रहा है। अगर कोई ऐसी ब्लॉक वाली एक्टिविटी कर रहा है तो वो ब्लॉक के एक्टिविटी के अंदर चीज़ें जो ड्रॉ कर रहा है, जो बना रहा है, वो अपनी जो प्रायर नॉलेज है उसके ज़रिए बना रहा होता है। जैसे लास्ट टाइम हमने प्रवास में देखा था टर्नल वाली एक्टिविटी। वो टर्नल वाली एक्टिविटी में एक पेरेंट अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उसका बच्चा किसी भी चीज़ के नीचे से जाने से बहुत डर लगता था, उसको फोबिया था, फियर था। और वही सेम एक्टिविटी, वही सेम गेम हमारे सेशन के अंदर, प्रवास के अंदर थी। तो जो हमने कार्टन के ज़रिए बनाया था, कार्टन के ज़रिए हमने टर्नल्स बनाए थे। तो बच्चे उस टर्नल्स के अंदर से गुजर रहे थे, हर बच्चा गुजर रहा था, लेकिन वो बच्चा बहुत डर रहा था। लेकिन क्या हुआ, उसकी मदर ने कोशिश की उस टनल के अंदर से गुजरने की। जब बच्चे ने देखा कि मदर उस टनल के अंदर से गुजर रही है और दूसरे बच्चे भी गुजर रहे हैं, तो वो बच्चा भी उस मदर को, दूसरे बच्चों को फॉलो करते हुए उस टनल के अंदर से गुजरा। जब उस टनल के अंदर से वो पास हुआ तो उसने ये नोटिस किया कि ये तो बहुत इन्जॉयमेंट है, ये तो लर्निंग है, और उसका वो फियर वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। और इसके बाद से इसकी मदर ने हमें फीडबैक दिया कि इसके बाद वो बच्चा ईजीली उस चीज़ के अंदर से, कोई भी चीज़ के नीचे से गुजर जाता है, अपनी चीज़ें पलंग के नीचे से उठा लेता है। तो वो उसने अपने फियर को ओवरकम किया प्ले के ज़रिए। लेकिन उसमें आपने ये चीज़ नोट की होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मदर ने वो एक्टिविटी परफॉर्म की। बच्चा कंफर्टेबल जोन में आ गया जब उस एक्टिविटी को उसकी मदर ने परफॉर्म किया, कि उस बच्चे ने सोचा कि मेरी मदर परफॉर्म कर रही है, इस मीन कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ डेंजर नहीं है। तो उस बच्चे ने जब वो चीज़ की, अपनी मदर को फॉलो किया और अपने फियर को ओवरकम किया। हमारे पास दूसरी एक्टिविटी है पिकाबू। पिकाबू में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, इसके ज़रिए बच्चे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना सीखते हैं, और इसके ज़रिए हम डिफरेंट वोकैब्स भी दे सकते हैं। जो चीज़ बच्चे को सामने नज़र आ रही है, लेट्स सपोज हमने कार्ड इंट्रोड्यूस कराई, बच्चे ने जब अपने पिकाबू के अंदर कार्ड को देखा, तो उस वक्त हम उसको वोकैब दें, उसको वो चीज़ का कलर दें, हम ये बताएं इसके 4 व्हील्स हैं। तो हम उसको उस वक्त चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हुए इनको वोकैब्स भी दें और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दें। थर्ड एक्टिविटी हमारे पास है बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक के ज़रिए बच्चा डिफरेंट चीज़ें बनाता है, और वो चीज़ें बनाता है, वो अपनी लर्निंग को यूज़ करता है। जो चीज़ें उसने अपने सराउंडिंग में देखी होती है, उस ब्लॉक के अंदर बनाने की कोशिश करता है,
और वो बनाते बनाते बहुत गलतियाँ करता है, वो ब्लॉक गिरता भी है, जिससे हम बच्चे को पिरामिड बनाना दे सकते हैं कप के ज़रिए। जब वो कप के ज़रिए पिरामिड बनाता है तो वो पिरामिड गिरता है, लेकिन वो फिर वापस कोशिश करता है ट्रायल एंड एरर से। लेकिन इसके लिए इसकी मदर या इनके पेरेंट के साथ वो गेम में हो और उनको मोटिवेट करे तो उनका वो मोटिवेशन लेवल और उनकी जो लर्निंग और इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ एक्टिविटी है पीलिंग। पीलिंग एक्टिविटी के ज़रिए बच्चा अपने कॉग्निटिव लेवल को यूज़ करता है, अपने माइंड को यूज़ करता है और सोचता है और ये करता है, कोशिश करता है, लर्निंग को यूज़ करता है कि किस तरह वो किसी भी फ्रूट की स्किन को निकाले। लेट्स सपोज हमारे पास बॉइल्ड पोटैटो है, तो उसकी स्किन को पील कर रहे हैं, तो बच्चा अपनी लर्निंग को यूज़ कर रहा है, अपने फिंगर्स को यूज़ कर रहा है, चीज़ को टच कर रहा है, फील कर रहा है। तो ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास थी पजल एक्टिविटी। पजल एक्टिविटी के ज़रिए बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखता है। उस पजल के अंदर बच्चा डिफरेंट डिफरेंट पजल ज्वाइन करता है और ज्वाइन के दौरान ही कुछ पार्ट सही ज्वाइन होते हैं, कुछ गलत, और फिर बच्चा वो सोच देख रहा होता है कि ये चीज़ मैंने ज्वाइन की, क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो कोशिश करता है कि उसको सही तरह ज्वाइन करे, और उसी के ज़रिए उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लर्न होती है। जैसे हमारे पास पियाजे की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी के मुताबिक बच्चा, ये जो एज है इसमें बच्चा इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट से। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जब एक बर्ड गुजर रही होती है आसमान से, पेरेंट उसको बताता है कि देखिए ये उड़ने वाली चीज़ है, ये बर्ड है। उसी दौरान एक एरोप्लेन भी गुजरती है, तो बच्चे की माइंड में जो चीज़ होती है वो ये होती है कि जो हर उड़ने वाली चीज़ है वो बर्ड है। लेकिन उस वक्त उसकी मदर उनके साथ होती है, तो वो उसकी मदर उसको बताती है कि डिफरेंस है इसमें, कि हर उड़ने वाली चीज़ बर्ड नहीं है, ये एरोप्लेन है, इसकी आवाज़ डिफरेंट है, इसकी साउंड डिफरेंट है। उसकी वोकैब में इंक्रीज हुई, इसका वर्ड, एक और वर्ड उसकी वोकैब में इंक्रीज हुआ, एक और वर्ड उसको मिला, और वो कैसे मिला? इसकी मदर के इन्वॉल्वमेंट से। तो इसके लिए पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे की खेल कूद में, बच्चे की लर्निंग में। बच्चे की लर्निंग को, प्ले को पॉजिटिव तरीके से पेरेंट ही कर सकते हैं। इसी तरह बच्चे ने अपनी लर्निंग करने अकोमोडेट किया कि हमारे पास एरोप्लेन है जो उड़ता है और बर्ड भी उड़ता है, मगर साउंड अलग है, वो लिविंग थिंग है, वो नॉन लिविंग थिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे की प्ले को पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि प्ले के अंदर कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें बच्चे के अंदर फोबिया आ जाता है, बच्चे के अंदर डर आ जाता है। लेकिन उस वक्त अगर पेरेंट इन्वॉल्व है तो पेरेंट उस फोबिया को ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है और बच्चे को बता सकता है नहीं ऐसा नहीं ऐसा। अगर कोई डर है तो बच्चे की उस डर को ओवरकम कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम बच्चे को बाहर ले जाते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ में, तो बच्चे को झूले में बैठने में बहुत से बच्चों को डर लगता है। अगर पेरेंट ही उस चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो उस राइड्स में बैठने में, तो वो बच्चा उस फोबिया को ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि ये वो एज है जिसमें बच्चा बहुत लर्न करते हैं, अपने फियर्स को ओवरकम करता है। तो पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है प्ले को पॉजिटिव बनाने में। तो पेरेंट को चाहिए कि वो बच्चे को प्रॉपर टाइम दे प्ले के लिए, बट पेरेंट को चाहिए कि उसको आउटडोर के साथ साथ इंडोर गेम्स भी कराए, स्क्रीन टाइम ना दे, बल्कि घर के अंदर ही ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करे, ऐसे टास्क दे जिसमें बच्चा पेरेंट के साथ इन्वॉल्व हो, और आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्क ले जाए और पार्क के अंदर डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कराए। लेट्स सपोज राइड्स में बिठा दिया, गार्डन के अंदर ग्रास को टच कर, वो कैप दे दी टच कर और बताया कि ग्रास कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या कलर है। तो उसको इस एक्सप्लोर भी करेगा बच्चा, लर्न भी करेगा और एक तरह का एंजॉय भी करेगा। और कोशिश ये करें कि हम बच्चों को जो गेम करा रहे हैं, जो प्ले करें, वो डेली लाइफ से कनेक्टेड हो। वो ऐसी चीज़ें हम बच्चों को दें लर्न करने के लिए जिसमें वो डेली लाइफ से उसको रिलेट कर सके, कनेक्ट कर सके। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम कोशिश ये करें कि प्ले को हाउस होल्ड थिंग से कनेक्ट कर दें।
हाउस होल्ड थिंग के ज़रिए बच्चों को प्ले कराएं। जैसे हमारे पास हम डिफरेंट वर्क कर रहे होते हैं घर के अंदर, हम उस काम के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व कराएं। उनकी वो बच्चे के लिए वो एक्टिविटी है, बच्चा उसको इन्जॉय कर रहा होता है। जिस तरह हम ग्रॉसरी के लिए जा रहे हैं तो हम कोशिश करें, जब हम ग्रॉसरी के लिए चीज़ें ले रहे हैं तो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये चीज़ हमने ली, ये ऑयल है, इसका कलर ये है, या हम बच्चों को ट्रॉली ड्रैग करने के लिए दे दें। हम यहाँ तो बच्चों को जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं थ्रू शॉपिंग। इसके अलावा हमारे पास वॉशिंग द क्लोथ्स है, या हम वॉश कर रहे हैं तो बच्चों को इन्वॉल्व कर लें कि जितने भी शर्ट्स हैं उनको एक जगह कर दें और उनको काउंट करें। तो इस तरह हम मैथ्स की चीज़ें भी इनको लर्न करवा सकते हैं। काउंटिंग, हमने टर्म दे दी शर्ट, तो बच्चे सारे शर्ट्स एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। अदरवाइज हम बच्चों को पैकिंग करने दे सकते हैं कि सारे शर्ट जो आप हैंग कर हो रहे हैं उसके अंदर रेड कलर के पैक्स लगा दें। तो इस तरह बच्चे को वोकैब्युलरी मिल रही है, लर्निंग भी हो रही है, कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं। बच्चा जब बात करने जाता है तो अपने साथ एक कोई ना कोई टॉय ले जाना जाता है। जब वो टॉय अपने साथ ले जाता है तो वो बच्चा जब जिस टब के अंदर खुद ना आ रहा होता है वो कोशिश करता है कि उस टब के अंदर टॉय को भी डाले। जब वो टॉय को उस टब के अंदर डालता है तो उस वक्त हम उसको साइंस की कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि ये चीज़ तैर क्यों रही है, ये नीचे क्यों नहीं सिंक हो रही, ये फ्लोट क्यों हो रहा है। देखिए हम उसमें वर्ड भी दे रहे हैं, फ्लोट और सिंक, और साथ साथ हम उसको कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं। अगर हम पानी के अंदर साबुन को मिला रहे हैं तो बच्चों को पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये बबल्स क्यों आ रहे हैं। तो इस वक्त उनके पास कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं, साइंस के, लर्निंग भी हो रही है, कलर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इनकी लर्निंग है। अगर हम किचन में जा रहे हैं तो किचन के अंदर ड्यूरिंग किचन हम कुकिंग के अंदर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ मिला रहे हैं, लेट सपोज हम पानी बॉईल कर रहे हैं, उसके अंदर से बाँप आ रही है, तो हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये बाँप क्यों आ रही है, ये धुआं क्यों आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ज़माने में बोलते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब ये जो सेंटेंस है ये अब सेंटेंस चेंज हो गया है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद को इन्वॉल्व कर दिया गया है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट इंक्रीज हो और बच्चा खेल कूद के ज़रिए उसको लर्न करे। लेकिन उस लर्निंग के अंदर पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स उसको पॉजिटिव तरीके से उस प्ले को ले जाएं और बच्चे की प्ले को और लर्निंगफुल बनाएं। मगर कोशिश ये करें पेरेंट्स कि जो हाउस होल्ड थिंग से बच्चा लर्न कर रहा है तो बच्चे को हर प्ले को लीड करने दें, ना कि उनकी लर्निंग को इंटरफेयर करें, ना कि कंट्रोल करें। बच्चा अपने ट्रायल एंड एरर से सीख रहा है तो बच्चे को वो सीखने दें, क्योंकि अगर हम उनको फोर्स करें कि नहीं ऐसा करें तो बच्चा सीखेगा नहीं, वो बच्चे की एरर हमेशा रहेगा। लेकिन हम बच्चा जब खुद की लर्निंग से सीखेगा तो वो उसको लर्न होगा, ठीक है ये मैंने किया था गलत था, तो नेक्स्ट टाइम वो सोचेगा ये करने से पहले। तो कोशिश करें कि उनको वो चीज़ लीड करने दें और अपनी लर्निंग से सीखने दें, और उनको कोशिश करें कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उनको उन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। ऐसा क्यों होता है, क्यों पानी के अंदर हमने शैम्पू डाला था, क्यों बबल आ रहे हैं। तो हम बच्चों को ये एक्सप्लोर करने की डिफरेंट क्वेश्चन को प्रॉप करें ताकि बच्चा अपनी लर्निंग को इंक्रीज करे और सोचे। और अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम क्वेश्चन को इंटरटेन करें, ना कि ये बोले कि बेटा नहीं ऐसा नहीं, हम उस क्वेश्चन का आंसर दें और उसको हर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए मटेरियल दें। और कोशिश ये करें कि हम चीज़ों को जेंडर बायसनेस ना करें कि ये चीज़ें बॉयज़ की हैं या ये चीज़ें गर्ल्स की हैं, नहीं, हम इक्वल चीज़ों को दें, उनको हर चीज़ एक्सप्लोर करने दें। होपफुली आपको ये आज का सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप कोशिश ये करें कि हम इस प्ले की जो हमने आज सेशन लिया है इसके साथ एक लर्निंग पॉइंट अपने साथ ज़रूर ले जाएं कि हम कोशिश करें कि हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करें और कोशिश ये करेंगे कि हम इनको फिजिकल गेम्स में इन्वॉल्व करें। थैंक यू। Goodbye, goodbye, goodbye. We'll see you soon. We'll see you soon. हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा।
आप इस सेशन को द स्माइली पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और हम अगले हफ्ते एक नए सेशन के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे।